Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will be discussing different types of clinical trial design. What is trial design and what is crossover design? इन दोनों में difference भी क्या है? So these are the most commonly clinical trial designs. Those are used in phase 1, 2, 3, right? So let's try to understand. So if you are wanted to take 100 patient in any trial, so how this parallel clinical trial will be designed. So I have taken one theoretical example, that phase 2 randomized double blind parallel study to compare treatment A and B. So treatment A का कंपैरिजन करना है B के साथ, पैरेलल स्टडी है. So ऐसा करके एक डिज़ाइन है. So 100 पेशेंट हमें लेने हैं. So लेने के लिए what will happen? So what is the first step if you are clinical trial researcher, that you can mention in the comment section that what will be the first step? It will be the screening. Say if I say this trial is happening with BP patient. So the doctor will be doing a screening based on this, that the participant who comes in, the person is eligible. Maybe they have set the age between 18 to 60. Maybe person is already having BP issue, high BP issue. So that person will get screened. Basically screening is checked by doctors. So then after this, what will be the next step? Again, you can mention in the comment box. That is randomization. So this randomization is nothing. It's just like we have two treatment options. One is which is new treatment A. One is already for a BP which is available in the market. These are the two treatments. Now how doctor will decide कि आप कौन से treatment में जाओगे? If they are deciding by this person, okay, this person looks nice, let me give that person B treatment, and let me give that other person A treatment, that will be biased. That means result won't be good. So how on a basis on double blindness, that they are not knowing, neither patient is knowing, that is known as a double blindness, they will randomize. This will happen with the computer program. So just imagine patient A comes, डॉक्टर ने चेक किया, सब सही है. नाउ कैसे वो बोलेंगे ट्रीटमेंट ए में जाए या बी में? जस्ट इमेजिन यू हैव फ्लिप्ड अ कॉइन फ्लिप किया, बट आपने देखा नहीं है कि हेड आया टेल आया, बट कंप्यूटर में उन्होंने सेट कर रखा कि अगर हेड आएगा तो वो ए में जाएगी, टेल आएगा तो बी में आएगा, बट वो हेड आया या टेल आया, नो वन नोज, राइट? सो वो दैट इज कोड. सिंपल वे में आई हैव टोल्ड यू. सो रैंडमाइजेशन हो गई. रैंडमाइजेशन के बाद जहाँ तो वो पेशेंट ए में जाएगा ट्रीटमेंट, जहाँ ट्रीटमेंट बी में, लेकिन बस वो इन्हीं दो ट्रीटमेंट में रहेगा जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता. टिल द एंड, टिल द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल दे विल रिमेन इन द सेम ट्रीटमेंट. सपोज यहाँ राहुल आया, जैसे क्लिनिकल ट्रायल में नाम नहीं यूज़ किए जाते, बट जस्ट एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल. राहुल केम इन अ ट्रीटमेंट ए, and that till the end that person will remain in treatment. So Vikas आया, so that person is in a treatment B, till the end that person will be in the same treatment. That's one example. So इनको सब चीज़ें सेम टाइम पे मिलेगी. डे 1 पे पहली डोज मिली, से यहाँ पे डे 1 था, पहली डोज मिली. मे बी आफ्टर डे 50, जब 50 डेज हो गए उनके ट्रायल में पार्टिसिपेट करने पे, उनका कोई ब्लड टेस्ट हुआ, सेम पैटर्न फॉलो होगा. बेसिकली दो ग्रुप बन जाते हैं, 50 एक ग्रुप में आ जाएंगे, 50 एक में. दैट इज पैरेलल क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन. और जब तक ट्रायल ख़त्म नहीं होगा वो सेम डिज़ाइन में रहेंगे, राइट? दैट इज पैरेलल क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द क्रॉस ओवर इज डिफरेंट फ्रॉम अ पैरेलल. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप विल बी सेम. वी आर डूइंग द सेम ट्रायल, like we are doing a phase 2 double blind, but the only difference is this. Earlier we are saying parallel design, now we are saying crossover design, and we are comparing treatment A and treatment B in BP patient, right? So that's the example. Okay? So now here we wanted to take again 100 patient ही हमें लेने हैं. What will be the first step? Now you can tell easily,
स्क्रीनिंग बेसिकली डॉक्टर ने चेक करना है कि जो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो एलिजिबल हैं। मे बी कोई पेशेंट में भी ऑलरेडी बीपी का इशू है, सब कुछ देखने में चेक सही लगा, बट व्हेन दे केम टू नो दैट मे बी दैट लेडी इज प्रेग्नेंट, देन वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी randomization, like flipping of your coin. So this is your again treatment A, this is treatment B. So again हम सेम एग्जाम्पल से कंटिन्यू कर सकते हैं कि राहुल आया, सो वो ट्रीटमेंट ए में आया, और विकास से, दिस इज़ वन ऑफ द पेशेंट्स, राइट, विकास आया, वो ट्रीटमेंट बी में आया। सो अदरवाइज अगर 100 पेशेंट लेते हैं तो 50 एक ग्रुप में चले जाएंगे, 50 एक ग्रुप में चले जाएंगे। एक इनमें से राहुल था, एक इनमें से विकास था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नाउ आफ्टर सम डेज पैरेलल में हमने क्या पढ़ा, जब तक स्टडी ख़त्म नहीं होती वो सेम में ही रहते हैं, सेम ट्रीटमेंट ग्रुप में ही रहते हैं। बट यहाँ पे व्हाट विल हैपन डिफरेंटली, हियर आई हैव गिवन यू अ गैप। नाउ राहुल विल गो टू ट्रीटमेंट बी, ये तो हमारा ट्रीटमेंट बी चल रहा है ना, ट्रीटमेंट बी क्रॉस हो गया। आई हैव मेड अ क्रॉस, राहुल पहले ए ट्रीटमेंट पे था, मे बी 2 महीने के बाद या जैसे भी स्टडी डिज़ाइन में फिक्स होगा, सो दैट पर्सन हैज़ गॉन टू ट्रीटमेंट बी, बिकॉज ये वाली रेड नीचे वाली लाइन हमारी ट्रीटमेंट बी की थी। नाउ जो लोग इसमें होंगे, यहाँ पे था विकास, यहाँ था, दैट विल गो टू ट्रीटमेंट ए। बेसिकली हमारा स्विच हो गया। सो ये ग्रीन कलर की ड्रग है हमारी, ट्रीटमेंट ए है, ठीक है। सो वो सेम रहेगी, जो लोग हैं, जो ग्रुप है वो चेंज हो गया। सो नाउ विकास विल कम हियर, राहुल विल कम हियर, सो दे हैव मेड अ स्विच। बट आप एक चीज़ देखो, आई हैव शोन अ वाइट अ गैप हियर, what is this? This is very important, that when crossover happen, then they give some gap. This gap is known as a washout period. So crossover switch is separated by washout period. What is this washout period? Basically now Rahul drug A ले रहा था, नेक्स्ट डे उसको ड्रग बी दे देंगे, उसकी बॉडी में ए ड्रग के रिमेन्स रहेंगे, सो दैट कैन इफेक्ट कैन मिक्स अप। टू अवॉइड दैट समटाइम्स 7 डेज का गैप वॉश आउट पीरियड होता है, समटाइम 14 डेज, दैट ऑल डिपेंड ऑन द व्हाट टाइप ऑफ ड्रग दे आर using, what is the half life cycle of that particular drug, right, for how long that drug stays in body. So based on that, maybe 7 days, maybe 14 days wash out period रहता है. So after that it will switch. So इसमें क्या करते हैं ना, that same people they act as a control of their own. So that is the beauty of a crossover design. Then after this, then only once only crossover happens, that's it, then trial will get complete. So the main nutshell difference is that in a parallel everything till the end goes same, but in a crossover after some time treatments are get switched. जो पहले ए ड्रग ले रहा था वो अब बी लेने लग जाएगा, जो अब ड्रग बी ले रहा था वो ए लेने लग गया. और इसको दूसरी तरह से भी समझ रहे थे, जैसे राहुल ने पहले ड्रग ए ली, ठीक है, फिर उसके बाद उसका वॉश आउट पीरियड आया, उसको कुछ दिनों का गैप दिया गया, मान लो 14 दिन का गैप दिया, अब वो ड्रग बी लेगा, दैट इज़ क्रॉस ओवर. नाउ विकास का एग्जाम्पल लो, वो पहले उसने ड्रग ट्रीटमेंट बी में आया था, ड्रग बी ले रहा था, लेकिन आफ्टर से 2 महीने के बाद उसको गैप दिया गया, मे बी 14 डेज और मे बी 7 डेज, अब उसको ड्रग ए लेनी है. So that is the crossover design. So I hope this is clear. If you really liked this video, just mention in the comment section, and please like this video and share with your friends. Thank you so much.